Hello everyone, welcome back to my channel. I am Garima Singh and in today's video we'll be doing another map skill from our chapter number 2 which is about physical features of India. So today we'll be doing another map skill work from another chapter which is chapter number 2, the physical features of India. Right? So the theory part is already covered and I hope you guys are revising your content regularly. So today we'll be doing the NCERT map skills. Okay, so again we have few questions from this chapter and the questions that we get from this chapter is to mark the places, right? So the very first thing we need to mark the mountains and the hill ranges of India, right? So the very first mountain is the Karakoram range. So guys, it lies in the state of Jammu and Kashmir, which is no more a state, right? Just to give you an idea कहाँ आपको मार्क करना है, इसलिए मैंने यहाँ ये लिखा है ताकि आपको पता हो where is the exact location, where are you going to mark this Karakoram range. When we talk about Karakoram range and the Zaskar range, इन दोनों को comprise करके भी समझेंगे. These are the ranges of Himalayas and our Himalayas are in the shape of कॉन्वेक्स आर्क. किया था ना हमने थियोरी में. सो जब ये रेंज स्टार्ट होती है, स्टार्ट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर एंड एंड्स देयर एट अरुणाचल प्रदेश, राइट. तो जब जम्मू कश्मीर से जब ये रेंज स्टार्ट होंगी, द अपर रेंज इज द काराकोरम रेंज, हम जम्मू कश्मीर में मार्क करेंगे एंड उसके थोड़े से नीचे विल बी मार्किंग जास्कर रेंज. We have several ranges here, but we'll go according to our NCERT syllabus. For class 9th, we need to mark only two ranges. One is Karakoram range and other is Zaskar range, right? So guys, for this map, you need to take up the physical map. Okay, physical map of India लेना है, not the political. Political और physical में I hope you are aware of the difference. Political में states की boundary mark की होती है और physical में we are not marked, okay, with the respective areas of the state. Therefore you need to here take the physical map of our nation. So coming to the very first part, तो हम करेंगे यहाँ mountain and different hill ranges, right? काराकोरम रेंज क्या बताया था मैंने, जम्मू कश्मीर वाले रीजन में है, राइट. तो काराकोरम रेंज को मार्क करने के लिए आप कैसे याद करोगे, जो ये इंडिया का टर्न है इधर, यू विल सी अ लिटिल इनवर्ड, ओके, टर्न थोड़ा सा अंदर की साइड से होके फिर बाहर की साइड निकल रहा है. तो ये जो अंदर की साइड होगा गाइस, इससे आप इस रेंज से पैरेलली यहाँ ड्रॉ करोगे ऊपर की साइड, तो दिस विल बी आवर काराकोरम रेंज, राइट. एंड जस्ट बिलो द काराकोरम रेंज जो नेक्स्ट वाली जो हमारी अंदर की साइड टिप होगी, उस टिप से आप मार्क करोगे, दैट विल बी आवर जास्कर रेंज. आई होप इट इज क्लियर. So both the ranges, the Karakoram range and the Zaskar range, lies in the state of Jammu and Kashmir, right? So accordingly, mark it in your map. And also I would suggest to take out your map and start filling it along with me, so that you have a clearer idea what all place we are marking. Next we have the Patkai Bum. Okay, so guys, इसके पीछे एक स्टोरी है. पटकना क्या होता है इन आर लैंग्वेज, भाई कहीं उठा के फेंक दिया. सो सिमिलरली पटकाई बम, हम भी इसको उठा के थोड़ा दूर फेंक देंगे, राइट. जिसकी वजह से ये जो हिल है दैट विल बी फाउंड ऑन द बॉर्डर एरिया ऑफ इंडिया विच इज कनेक्टेड टू द अनदर नेशन म्यांमार. ओके, तो म्यांमार वाली इतनी दूर पटकेंगे इस हिल को कि ये म्यांमार वाली रीजन पे जाके बॉर्डर पे अटकेगी इंडिया की, राइट. सो आई होप दिस विल हेल्प यू टू रिमेंबर वेयर इज पटकाई बम. सो विल बी मार्किंग इट इन द स्टेट ऑफ नागालैंड. ओके, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, बिल्कुल ही हमारी ईस्टर्न मोस्ट स्टेट्स में आती है, राइट. तो नागालैंड में मार्क करेंगे. देन टॉकिंग अबाउट दिस वर्ड पटकाई बम, सो मार्किंग द पटकाई बम हिल्स, एज आई टोल्ड यू, पटक दिया है, दूर जाके बॉर्डर पे गिरा है, राइट. सो दिस इज द नागालैंड स्टेट हियर. सो विल मार्क हियर अराउंड द बॉर्डर. दिस विल बी कंप्राइजिंग आवर पटकाई हिल्स, राइट, पटकाई बम हिल्स. Then we have the Jantiai hills, right. When we were doing the theory of this chapter, when we were discussing the Meghalayan plateau के अंदर 3 हिल्स है लगती, गारो, खासी एंड जयंतिया, राइट.
सो अब हम उसमें से सिर्फ एक ही हिल को मार्क करेंगे विच इज जैंतिया हिल. ओके, तो आपको क्लियर हो गया मेघालयन प्लेट्यू मीन्स इन द स्टेट ऑफ मेघालय हम मार्क करेंगे इसको. तो टॉकिंग अबाउट जैंतिया हिल्स, इसके लिए भी एक ट्रिक है गाइस. 3 हिल्स है, सो गारो खासी जैंतिया. तो जैंतिया विल बी द ईस्टर्न मोस्ट इन द 3 हिल्स, राइट. सो ये जो टिप होगी यहाँ पे, दिस टिप here will be marking the जैंतिया hills, right. बाकी की हिल्स हमें नहीं करनी है, एक ही हिल कर रहे हैं. तो आई एम गिविंग यू हिंट सो दैट यू कैन रिमेंबर कि एग्जैक्टली इन हिल्स को कहाँ मार्क करेंगे, राइट. जैसे काराकोरम का एक ट्रिक दिया, जास्कर की एक ट्रिक दी है, पटकाई बम के लिए दी है. सिमिलरली जैंतिया हिल्स के लिए क्या है, ये जो मेघालय स्टेट का ये जो यहाँ टिप होगा, ये जो ऐसे कर्व है ना, यहाँ पे कर्व जो नीचे जा रहा है, उस कर्व की बिल्कुल एंड पे यहाँ मार्क करोगे आप जैंतिया हिल्स. आई होप द लोकेशन इज क्लियर. देन वी हैव द विंध्यन रेंज. ओके, सो दिस रेंज इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट लाइज इन द सेंट्रल इंडियन पार्ट. ओके, सेंट्रल इंडिया के पार्ट में दिस आर द रेंजेस विच आर प्रेजेंट. व्हेन वी वर डूइंग दिस चैप्टर्स थ्योरी, वी हैव रेड अबाउट विंध्यन रेंज कि जो नर्मदा रिवर है उसके जस्ट अबव हम क्या मार्क करते हैं, विंध्यन रेंज वाला रीजन है, राइट. हमने पढ़ा है ना चैप्टर में. सो सिमिलरली विल बी मार्किंग नाउ विंध्यन रेंज. इसको एग्जैक्टली मार्क करने के लिए रिमेंबर, ये जो हमारे गुजरात का कट दिया होगा ना, यहाँ पे गुजरात के कट के पैरेलली आप थोड़ा सा अंदर को ड्रॉ करोगे और यहाँ से स्टार्ट करोगे. स्टार्ट करके एंड यू विल कट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, थोड़ा सा उसको ऊपर तक निकालोगे. So this range will mark here the Vindhyan range. I hope the location is clear. And next we have the Aravallis. I am sure everybody is aware of the Aravalli. So when you talk about Aravalli hills, so this range extends towards the Rajasthan state, the Delhi, Haryana and Gujarat region. इन चारों स्टेट से होके गुजरती है. ओके, जनरली लोगों को नहीं पता है अरावली 4 स्टेट से होके निकलती है, बट नाउ यू गाइज आर लकी इनफ टू नो दैट अरावली पासिस फ्रॉम 4 स्टेट्स. ओके, सो विल बी मार्किंग अकॉर्डिंगली. थोड़ा सा हम राजस्थान वाले रीजन में इसको मार्क करेंगे, क्योंकि एग्जैक्टली जब हम इसको मार्क करते हैं वी मार्क इट हियर इन दिस रीजन, राइट. अदरवाइज अगर हम थियोरेटिकल पढ़ें तो इसका कुछ हिस्सा हमारे हरियाणा में भी है, कुछ हिस्सा इसका हमारे दिल्ली वाले रीजन में भी आता है. ओके, लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल टू मार्क दिस अरावली रेंजेस इन डिफरेंट प्लेस. सो जैसे हमने यूटी के केस में किया था, पुडुचेरी के केस में 3 हिस्सों में बट गए, लेकिन जनरली वी मार्क एट अ पर्टिकुलर प्लेस इन तमिलनाडु, राइट. यहाँ भी सेम रहेगा, अरावली को विल मार्क इन द रीजन ऑफ राजस्थान. ओके, जो मेजर पोर्शन जहाँ रहता है उधर मार्क करेंगे. सो अरावलीज विल बी मार्क्ड हियर ऑन द टिप ऑफ राजस्थान एंड गुजरात. ये यहाँ खत्म हो जाता है राजस्थान. सो इसके यहाँ से स्टार्ट होगा टुवर्ड्स द इनर साइड ऑफ राजस्थान, विल मार्क हियर अरावली रेंज. आई होप द लोकेशन इज क्लियर. एंड लास्टली वी हैव द कार्डमम हिल्स. सो गाइज दिस हिल्स लाइज इन द वेस्टर्न घाट रीजन. वेस्टर्न क्यों, क्योंकि ये वाला जो कोस्ट है टुवर्ड्स द केरला साइड, ये हमारा वेस्टर्न कोस्ट है, और वेस्टर्न कोस्ट पे हमारे क्या है, वेस्टर्न घाट्स हैं. ईस्टर्न कोस्ट पे हमारे ईस्टर्न घाट्स है. आई होप यू रिमेंबर. सो कार्डमम हिल्स जो है इट लाइज ऑन द वेस्टर्न घाट्स रीजन, राइट. तो वेस्टर्न घाट रीजन ये वाला रीजन है, लेकिन कार्डमम हिल्स किधर है, इन द स्टेट ऑफ केरला. तो आप नीचे के यहाँ मार्क करोगे एज कार्डमम हिल्स. आई होप all the mountain and the hill ranges are clear, and by now you have also marked it in your physical map of India. Next we have the second question. We need to mark the peak. Peaks क्या होते हैं बच्चों? अभी हमने mountain ranges मार्क की हैं. जब हम किसी माउंटेन की बात करते हैं, सपोज दिस इज अ माउंटेन, राइट, इसकी हाईएस्ट टॉप प्लेस या उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड पीक. ओके, जो उसकी चोटी हम मार्क करेंगे, चोटी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द गर्ल्स ब्रेड हियर, राइट. लड़कियों की चोटी की बात नहीं कर रहे बच्चों हम. ओके, दिस वाज समथिंग ऑन द लाइटर नोट. वी आर टॉकिंग अबाउट द माउंटेन पीक, मतलब माउंटेन की चोटी की बात कर रहे हैं. ओके, सो फर्स्ट वी हैव द K2. K2 is the highest point in India. But क्या प्रॉब्लम है K2 के साथ? क्यों नहीं हम इसको हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया बोलते हैं K2 को?
क्योंकि इट लाइज इन द रीजन where we have the conflicted region with the पाकिस्तान। पाकिस्तान और इंडिया का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जम्मू कश्मीर की स्टेट पे, राइट? तो उस वाले रीजन में K2 लाई करता है। Therefore, K2 being the highest peak, लेकिन हम इसको इंडिया की हाईएस्ट पीक कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि कॉन्फ्लिक्टेड रीजन में है। ओके, तो K2 को हम मार्क करेंगे। K2 लाइज इन द काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज हमने मार्क की थी ना, तो उसके उसी रेंज में लाई करता है हमारा K2। लेट्स सी ऑन द मैप। सो दिस वाज आवर काराकोरम रेंज, ऊपर वाली रेंज। तो इसके हियर बिल्कुल इधर टिप से थोड़ा सा नीचे विल मार्क हियर दिस K2 रेंज। ओके, और द K2 peak, right? I hope you have marked the place. K2 peak is in the Karakoram range and it will lie just here. For the peaks, you better start making triangle so that you have an idea. The smaller triangle represents the peak. Then we have the Kanchenjunga peak, right? So this is the highest peak of India. अगर question आता है, you are now aware of another GK fact regarding our nation. The highest peak of India is Kanchenjunga, right? And where does it lie? It lies in the state of Sikkim. So Sikkim is the region, एक छोटी सी state है here, somewhere here, the place between the Nepal country and the Bhutan country. We have a little portion of India. Okay, छोटा सा यहाँ पोर्शन है इंडिया का, दिस रीजन विच इज सिक्किम। सो इन सिक्किम यू मार्क अनदर ट्राइंगल एंड मार्क दिस ट्राइंगल एज कंचनजुंगा पीक। नेक्स्ट वी हैव द नंगा पर्वत। ओके, सो गाइस इट लाइज इन द जास्कर रेंज। जास्कर रेंज के टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रेंज जो हमने मार्क किया है, उस रेंज पे हम एक छोटा सा ट्राइंगल मार्क करेंगे एंड दैट ट्राइंगल विल रिप्रेजेंट आवर नंगा पर्वत। सो गाइस दिस वाज आवर जास्कर रेंज। नीचे इस जास्कर रेंज की बिल्कुल यहाँ टिप पे जब हम मार्क करेंगे एक छोटा सा ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल विल रिप्रेजेंट आवर नंगा पर्वत। एंड लास्टली वी हैव द अनायमुडी पीक। ओके गाइस, so Anaimudi peak, another fact here from our chapter, it is the highest peak of Western Ghats. Western Ghats आपको पता है कहाँ है? तो Western Ghat का जो highest peak है that is Anaimudi. So it again lies in the state of Kerala. और यहाँ एंड पे नहीं मार्क करना है, थोड़ा सा ऊपर मार्क करना है in the state of Kerala, the Anaimudi peak. Okay, again we'll make a triangle to represent this Anaimudi peak. So by now you have marked all the mountain and the hill ranges. Along with that, we have also marked important peaks. So third question we have, we need to mark the important plateaus. Okay, so plateau की तो बात करते हैं. What do you understand by the term plateau? It is a high area of flat land. मतलब जमीन का जो एरिया है, it is little elevated, थोड़ा सा उठा हुआ है, लेकिन साथ में क्या है? फ्लैट लैंड है, बिल्कुल एक इक्वल लेवल पे जमीन है, राइट? हाई एरिया ऑफ फ्लैट लैंड इज कॉल्ड प्लेट्यू। दो मेजर प्लेट्यूज हैं हमारे इंडिया में, वन इज छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड अदर इज मालवा प्लेट्यू। टॉकिंग अबाउट द छोटा नागपुर प्लेट्यू, इट लाइज इन द स्टेट ऑफ झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड छत्तीसगढ़। लेकिन अब तक हमें समझ में आ गया है, जर्नली जब हम मैप में मार्क करते हैं तो कौन सी स्टेट में मार्क करते हैं? जहां मेजर एरिया उसका लाई करता हो, राइट? सो मेजर एरिया ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू किधर है? इन द स्टेट ऑफ झारखंड। सो विल बी मार्किंग दिस प्लेट्यू नियर एंड अराउंड द स्टेट ऑफ झारखंड। एंड देन वी हैव द मालवा प्लेट्यू। ओके, सो मालवा प्लेट्यू, like in my theory also I have explained, it lies between both the major range, right? कौन कौन सी रेंज? द विंध्यास एंड द अरावलीज। विंध्या और अरावली के बीच वाला जो एरिया है, दैट एरिया इज नोन एज द मालवा प्लेट्यू। नाउ लेट्स सी इट ऑन द मैप। So talking about छोटा नागपुर प्लेट्यू, अगेन विल मार्क हियर इन द स्टेट ऑफ झारखंड। ये वाला एरिया मार्क करेंगे हम। आई होप इट इज क्लियर। एंड देन टॉकिंग अबाउट द मालवा प्लेट्यू, अभी बताया दो मेजर रेंज के बीच में है, अरावली एंड द विंध्यास। सो इन बिटवीन दिस रेंज विल मार्क द मालवा प्लेट्यू, right? So guys, I would suggest even you guys use different colors so that you have a clear idea at a very first glance that you have marked different places with different color. अगर आप एक कलर से मार्क करते हो तो इजीली आप फर्स्ट ग्लांस में नहीं
जान पाते कि आपने अलग अलग रीजन मार्क किए हुए हैं. ओके, एंड अगेन it looks more interesting and you will feel like to study what all is there in this map, right? And lastly, we'll be marking the Indian desert, the Western Ghats and the Lakshadweep island. In my previous map, when we were doing the India size and location, we have already marked the Lakshadweep island. I hope you know the place, the location. But today we'll be marking two more physical feature of India, which is Indian desert and the Western Ghats. So talking about the Indian desert, सबको पता है कहाँ है? In the state of Rajasthan. So I have marked here with red colored dot to represent the Indian desert. I hope you have marked it. Then we had the Lakshadweep island. I'll not be marking because we have already done this. So this is the island group in the Arabian Sea, which is called the Lakshadweep Islands. And lastly we have the Western Ghat. Western Ghat मतलब western coast पे जो घाट्स हैं, जो region है लगते हुए, that is called the Western Ghat. So I have represented the Western Ghat with orange color, starting from the state of here under Gujarat, under the Gujarat state जो region है ये महाराष्ट्र का start होता है. We have started marking Western Ghats from Maharashtra till the tip of Kerala. I hope the location of Western Ghats is also clear. So guys, talking about the physical features of India, as we have studied in our chapter, there is a lot more features, right? But for the math skills, we need to do according to the syllabus. So we have marked only few of the features. So let's take a quick revision. First, we have done the mountain and the hill ranges. So first, we have done the Karakoram range. It is in the state of Jammu Kashmir. The Zaskar, again in the state of Jammu and Kashmir. Then we have done the Patkai Bum, which is towards the border of India and Myanmar in the state of Nagaland. Then we have marked this Jaintia Hills, which lie in the Meghalayan plateau. Then also we have came to central India part. We have marked the Vindhyan range, and also towards the western side we have marked the Aravalli range, right? And lastly, in mountain and hill ranges, we have marked the Cardamom Hills, which is in the Western Ghat, right? After that, we have done mountain peaks. So peak क्या है? Top of the mountain. So we have done K2, which is the highest peak, but due to the conflict with the Pakistan, as it lies in the conflicted region, it is not considered as the highest peak, and it lies in the Karakoram range. Then we have done the Nanga Parbat, which lies in the Zaskar range, and then we have marked the highest peak of India, which is the Kanchenjunga peak in the state of Sikkim, and we have also marked the Western Ghats highest peak, which is Anaimudi. Then we have marked the important plateaus. Plateaus क्या है? High area of flat land. उसके अंदर दो मेजर प्लाट्यू मार्क किया है, छोटा नागपुर प्लाट्यू एंड द मालवा प्लाट्यू. मालवा किसके बीच में है? टू इंपॉर्टेंट रेंज बिटवीन अरावली रेंज एंड द विंध्यन रेंज. एंड छोटा नागपुर प्लाट्यू वी हैव मार्क्ड इट अराउंड द रीजन ऑफ झारखंड स्टेट, राइट? एंड लास्टली वी हैव डन द अनदर इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, व्हिच इज द इंडियन डेजर्ट, the Western Ghats and the Lakshadweep Island. I hope the map of the second chapter is clear to you all. Guys, if you are liking this video and found this video really helpful, then do not hesitate to give in your feedback in the comment section below, telling me how did you find this video. So that's it for today's video, guys. Thank you for watching Economics Window by Garima Singh. And if you like this video, then press in the thumbs up icon. And also, guys, if you are new to this channel or you are already on this channel but haven't subscribed to my channel, make sure you like, share and subscribe and help us grow each day. Thank you for watching.